চাকরির পরীক্ষার সংস্থা এমন নেই যেখানে ভুরি ভুরি নন এসটিরা এসটিদের ধার্য অধিকার গ্র্যাব করছে না বা ছিনিয়ে নিচ্ছে না। এই অধিকারের বিরুদ্ধে আমরা আজ ডিএম স্যারের কাছে ডেপুটেশন দিতে চলেছি, যাতে আদিবাসীদের জন্য ধার্য অধিকার আদিবাসীরাই যাতে পায়, যেন কোনো নন ট্রাইবাল বা আদিবাসী মানুষ যারা আছেন তারা যেন অসৎ উপায় বা অন্যায়ভাবে সার্টিফিকেট বার করে আদিবাসীদের জন্য ধার্য সুযোগ সুবিধা যাতে ছিনিয়ে নিতে না পারে। আমাদের এই মিছিলে যারা আশেপাশের মানুষজন আছেন, আপনারাও যদি চান যে সহনাগরিক হিসাবে আদিবাসীরা যেটা বলছে বা আদিবাসীদের যে দাবি মাত্র 6% সংরক্ষণের যে প্রভিশন আছে, সেই অ্যাটলিস্ট 6% অধিকার যেন আদিবাসী মানুষরাই যেন পায়, এই দাবিতে আপনারা যদি সহমত থাকেন, যারা এখানে আছেন বা শুনছেন ওনাদেরকেও অনুরোধ জানাচ্ছি আপনারাও আমাদের মিছিলে পায়ে পা মেলাতে পারেন। সরকার যেখানে দুয়ারে যাচ্ছে, আমরাও এই ভারতবর্ষের আদিবাসী আমাদেরকে প্রশাসনের দুয়ারে এসে দাঁড়াতে হচ্ছে। ওই মুহূর্তে একটু ভাবুন, সবার ভাবা দরকার। আজকে আমরা এসে এই দুয়ারে আসতে বাধ্য হয়েছি। নিট থেকে কলেজ, এই কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে, পিএসসি পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে আমরা আদিবাসী অনেকে না খুচু করবেন। আমরা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে নয়, আমরা শুধু যারা এই ব্রাহ্মণদের নীতিকে অনুসরণ করে তাদের বিরুদ্ধে না করছি। আমাদের না পেটে আমরা আদিবাসী, কিন্তু আমাদের আদিবাসী বললে সবার একটু অন্যরকম না, মানে না শীতকাল ভাবতে ভালো লাগে। পত্র পত্রিকাতে অনেক লেখাপড়া করা যায়, নারী দেখা নিয়ে লেখাপড়া করা যায়, বাজারে কাগজগুলো তাই লেখে। জনপরী নেতা নেত্রীরাও তাই বলেন, অনেক উন্নয়নের কথা বলেন, দেখেও না দেখে দেখার ভান করেন। প্রশাসন নীরব। ব্যানার্জি এসটি, খাতুন এসটি, খোঁজ নেবেন। আজকে যেখানে বলা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্সি, নেট সর্বস্ব, সেখানেও আজকে সবকিছু আর ট্রান্সপারেন্সি থাকলো না। পিএসসি দেখুন, পিএসসি যে প্যানেলগুলো আছে, যদি চোখ কান খোলা থাকে, আদিবাসীদের যে পাতাটা সেটাতেও চেটে ফুটে খাচ্ছে কারা? না ও আদিবাসীরা। কেন? আর এটার জন্য মাফ করবেন, ভিখারি আর শিকারী, ভিখারি আর শিকারী এদেরকে কখনো বিশ্বাস করবেন না। এরা সবসময় ভেদ ধারণ করে। এই রাজনীতির কারবারিরা ঠিক তেমনি আপনাদের সবার সামনে গিয়ে একরকম কথা বলেন, আর ভোট পেরোনোর পর তাদের আর কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। তাই সাধু সাবধান। আজকে যারা আমাদের এই আদিবাসী তকমাটা নিয়ে আমাদেরকে বঞ্চিত করে রাখছে, আমাদের লড়াইটা তাদের বিরুদ্ধে। প্রথমে বলছিলাম ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে, আমরা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে নয়। আপনি স্কুল সার্ভিস কমিশন দেখবেন, যতগুলো প্যানেল এখন আমরা জানতে চেয়েছিলাম পিএসসি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের কাছে, আর কি করা হয়েছিল? উনি দেখাতে অসম্মত হয়েছেন। তারা কার কাছে করবেন, কার কাছে নালিশ জানাবেন? তাই আমাদেরকে তৃণমূল স্তরে গ্রামে
তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। বলতে হয়, না হলে মানুষ জানবে না। আমরা 18 তারিখ থেকে ঘুরছি, লাস্ট 23 তারিখ রাতটা আমাদেরকে জানানো হলো। তারপর কতবার পরিবর্তন করা হলো জায়গা, সেটা প্রশাসন জানে, এবং কেন কর্মসূচি দেয় তাও প্রশাসন জানে। আমরা আর মতিলাল বাবু সাহেব কাল একটু আসেন। আমরা আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির রাজ্য সম্পাদক পাশাল কিসকু, পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি মতিলাল সোরেন, আমাদের এই পশ্চিম বর্ধমান জেলার সম্পাদক, জেলা সম্পাদক পবনচন্দ্র সোরেন মহাশয়, আজকে আমরা তাদের নেতৃত্বে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য এসেছি এবং আমাদের এই লড়াই আন্দোলনকে পূর্ণ সংহতি জানিয়েছেন আশেকা আমাদেরকে পূর্ণ সংহতি জানিয়েছেন। আগামী দিনে আশা করবো প্রত্যেকটা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, বলছি মহিলাদের থেকে প্রত্যেকটা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ আমাদের পাশে থাকবেন। সংহতি চাইছি, মেলবন্ধন চাইছি। আমরা অন্য কারো পাতাতে, আমরা অন্য কারো পাতা ছিনিয়ে নিতে চাইছি না। আমাদের পাতা যেভাবে ছিনিয়ে নিতে চাইছে, আমরা বিনীতভাবে दुनिया क्या करते हैं, दुनिया के लोग क्या करते हैं, हम किसी के झमेले में, हम किसी के खुशी में किसी भी प्रकार का टांग नहीं अड़ाते हैं। हम अपने परंपरागत नियम को मानकर आज तक चलते हुए आते हैं। हम आज जंगल में हो, खेत खलिहान में हो या कहीं भी हो, हम अपने तरह से ही जीते हैं। हम किसी से ईर्ष्या तक भी नहीं करते हैं, किसी का सुख देखकर जलते नहीं हैं, किसी का दुख देखकर हम जरूर अफसोस करते हैं कि ऐसा दुख उनके ऊपर में नहीं होना चाहिए। परंतु आज हम किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, कहीं भी किसी का दुख में जरूर उनका दुख में हम हाथ बढ़ाते हो या उनके दुख के लिए अफसोस करते हो, लेकिन किसी भी तरह का हम एजिटेशन, प्रतिवाद एजिटेशन हम नहीं करते हैं, चाहे वो देश का हो, चाहे देश के संप्रदाय के हो। लेकिन आज हमें मजबूर कर दिया गया, आज हमें लाचार कर दिया गया, आज हमें विवश कर दिया गया। जो आज हम 2 मुट्ठी खाने के लिए दिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सोचते हैं, कभी मट्टी गाड़ी में, कभी बालू गाड़ी में, कभी राजमिस्त्री के साथ, कभी खेतों में, खलिहानों में, लेकिन आज हमें वो 2 वक्त के रोटी के सोचने के सिवा आज हमें मजबूर कर दिया गया है, विवश लाचार कर दिया गया है। आज हमें यहाँ उपस्थित होने के लिए, कुछ सोचने के लिए, क्या सोचने के लिए? आज अगर आप ये क्षेत्र में घूमकर देखें, सबसे ज्यादा अगर कोई शोषित है, सबसे अगर ज्यादा कोई वंचित है, अगर सबसे ज्यादा किसी के ऊपर में अत्याचार जुल्म चल रहा है, तो वो है आदिवासी। आज आप जिन आदिवासियों को, ये देश जिस आदिवासी का है, जिस निवासियों का है, जिनका देश होना चाहिए, ये हम गर्व से कहते हैं कि भारत भूखंड हम आदिवासियों का है, लेकिन आज आदिवासियों का राशन कार्ड में नाम गड़बड़ है। आज वोटर कार्ड नहीं है ठीक से, वोटर कार्ड में नाम गड़बड़ है, वास्तुक में नाम गड़बड़ है, कहीं पिताजी का नाम गड़बड़, तो कहीं अपना नाम भूल, कहीं माता का नाम गलत, इस तरह का। और ये भी है कि बहुत से लोगों का, आदिवासियों का ये मौलिक अधिकार जो होना चाहिए वो भी नहीं है।
आज इस क्षेत्र में ये आसनसोल पश्चिम बर्धमान क्षेत्र में ये आदिवासियों का एक समय गढ़ था। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो महापंडित राहुल संस्कृतन का मानव समाज किताब उठाकर देख लीजिए कि यहाँ पर आदिवासी थे या नहीं थे। तो मैं दूसरी जगह की बातों नहीं कह रहा हूँ, खैर मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने पेश किया हूँ। तो आज आदिवासियों को, आज आदिवासी जगह से, अपने खेत खलिहान से वंचित है। आज आदिवासी अपने घर से उद्वास्त है। आज उनके घर से उन्हें निकाला जा रहा है, उनके जमीन को छीना जा रहा है, उनके वस्तु भीटा को छीना जा रहा है, जबकि वो आदिवासी इस देश का मूल निवासी, सच्चा, उसी का सच्चा निवासी, वो आदिवासी का ये हालत है। आज ये हालत है, फिर भी हम बर्दाश्त करके हैं। लेकिन अब हमारा बर्दाश्त का जो सीमा है वो सीमा लांघ रहा है और हमारा बर्दाश्त धीरे धीरे एक बोरसी का आग की तरह सुलग रहा है। आज हमारे मुंह तक पानी आ चुका है, बस नाक तक पानी आने के बाद फिर से एक हुल इस क्षेत्र में आरंभ होगा। हम लोगों ने इतना, हमारे ऊपर में अत्याचार हुआ जिनको मैंने गिनाया, इतने अत्याचार के बाद भी आज हम लोग चुप जरूर है, लेकिन बोरसी की आग की तरह धीरे 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 हम सुलग रहे हैं। आज हमारे अस्तित्व के ऊपर में जब एक खतरनाक बादल मंडरा रहा है, जब हमारे अस्तित्व के ऊपर में एक पतले धागे में तलवार टंग रहा है, तो आज हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारा बच्चों का, हमारे नौजवानों का, हमारे पढ़े लिखे छात्र नौजवानों का, आदिवासी छात्र नौजवान युवतियों का करियर में संकट आ चुका है, उनके जीवन में संकट आ चुका है, जो कि आज नकल सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। नकल आदिवासियों के नाम से नकल सर्टिफिकेट, नकल जातीय प्रमाण तैयार किया जा रहा है। अगर ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे, हमारे शिक्षित बेकार नौजवान कहाँ जाएंगे। आज कोई चटर्जी, कोई बनर्जी, कोई महतो, कोई दास, कोई सरकार अगर नकल जातीय प्रमाण पत्र बनाएगा आदिवासियों के नाम से, तो आदिवासी के छात्र नौजवान कहाँ जाएंगे, पढ़ लिख के कहाँ रेल में माथा देंगे। मैं यहीं पर और बात नहीं करने से बात नहीं कहूंगा। मैं एक बात यहाँ ऐलान करना चाहता हूँ कि आज अगर आप डीएम साहब, एडीएम साहब, जो लोग, जो अधिकारी इस तरह के कार्य कर रहे हैं, दो चार पैसे की चांदी की खनकती हुई पैसों के लालच में गलत तरीके से जातीय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, उनको रोकिए, अन्यथा उनको इसी बीएनआर मोड़ में धूप में खड़ा करके कपड़ा खोल के आलकुशी सर से पांव तक लगा देंगे। नोचते नोचते वो समझ जाएगा कि मैंने क्या किया। इसके साथ साथ मैं भी कहूंगा, जो लोग आज आदिवासियों के नाम से, आदिवासी नौजवानों के नाम से गलत जातीय प्रमाण पत्र बनकर गिरेबान खड़ा करके 56 इंची का सीना चौड़ा करके घूमता है और कहता है कि देखो हम आदिवासी का जातीय प्रमाण पत्र बना लिए, और लोग हमें क्या करेंगे। उन्हें भी बता देना चाहते हैं कि हमारे नौजवान अब चुपचाप नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे नौजवान हाथ में तीर कमान लेकर जो गिरेबान खड़ा करके चलते हैं, सर को ऊंचा करके चलते हैं और कहते हैं कि हम गलत तरीके से जातीय प्रमाण पत्र बना लिए हैं, उनको हमारे नौजवान नहीं छोड़ेंगे। बीच रोड में चप्पल जूता ही नहीं, जरूरत पड़ने से तीर कमान से उसका गर्दन को आर से पार कर देंगे। ये बात मैं यहाँ पर घोषणा कर देना चाहता हूँ। उस दिन ये ना कहे कि मेरा लोकतंत्र खतरे में है, उस दिन ये ना कहे कि संविधानिक तरीका नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हमारे पास इतने लोग थे, इसके पास आप लोगों को गुहार लगाना चाहिए। आखिर कब तक इन चंद बातों को कहते हुए मैं डीएम साहब को, एडीएम साहब को
आग्रह कर देना चाहता हूं। और मैं आदिवासी छोड़ के गैर आदिवासियों से भी ऐलान करना, गुजारिश करना चाहता हूं कि आज ही नहीं, सदियों से जब तक इस धरती में, भारत भूखंड में अत्याचार शोषण हुआ है, तो सबसे पहले पूरे जनमानस के लिए एकमात्र अगर लड़ाई के मैदान में समर क्षेत्र में कोई कूदा है, कोई कूदा है, कोई समर क्षेत्र में अपने सीना को ताना है, अपने बाजुओं को ललकारा है, तो आदिवासी है। वो चाहे बाबा तिलका हो, वो चाहे सिद्धू कान्हू हो, वो चाहे हमारे बाबा धरती आबा उल गुलान के मसीहा बिरसा मुंडा हो। और आदिवासियों का मैं नाम नहीं कहता हूं, ये है। अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी, ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ आदिवासियों का अस्तित्व का लड़ाई नहीं है। हमारा अस्तित्व जब जब खतरे में पड़ा है, हमने सीना तान के कूद पड़े हैं, उस सीना तान के कूद पड़े हैं। तथा सिर्फ हमारे नौजवान ही नहीं, बल्कि नौजवानों के साथ हमारे तरुणियों भी, युवतियों भी, हमारे माता बहनें भी सर ऊंचा करके इस समर क्षेत्र में कूद पड़े हैं। आज हमारे साथ इस तरह का हो रहा है, कल आपके साथ नहीं होगा, ये क्या गारंटी है। इसलिए आइए सौहार्दपूर्ण भाव से, मेल मिलाप भाव से, बंधुत्वपूर्ण भाव से हमारे आंदोलन में जो हम पांव बढ़ा रहे हैं, इसके साथ कदम ताल आप भी मिला के चलिए। इन्हीं चंद बातों के साथ आए हुए इस अभियान में समस्त आदिवासी छात्र नौजवानों को, बुद्धि विशिष्ट बुद्धि वर्गों को हुलसाई जोहार, उल गुलान जोहार देते हुए मैं अपना यह चंद बातों को यहीं पर विराम देता हूँ।